शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। Jai Shri Krishna and good morning to everyone present here. So today we are going to have a discussion on the topic family business. So I think before starting the formal topic, let us have a brief introduction about MVPM and what MVPM does. Vidya Pracharak Mandal is a more than 90-year-old non-profit, non-political, charitable organization which is solely devoted to the cause of education. 9 decades back, MVPM started a hostel in Pune, and today it has graduated to run several scholarships, schemes, skill development programs, skill development centers, colleges, schools, and hostels. These are spread across Mumbai, Pune, Solapur, Ahmednagar, Praravnagar, and other places. In 2012, MVPM instituted a Scholar Award for Academic Excellence, which today has more than 100 awardees from diverse fields such as CA, engineering, medicine, journalism, pharmaceuticals, biological sciences, and more. Good morning, everyone. My name is C. Palash Maheshwari, and today we are going to discuss a very important topic that is family business and the Maheshwari youth. The moderator of the session is C.A. Saurabh, who is currently working as an assistant manager in Kimberly Clarkson. Saurabh is a rank holder in CFNL examinations, and he is also an MVPM awardee. Over to you, Saurabh. Thank you, Palash. Thank you for the introduction. So we have around 60 participants and we can start the discussion. सबसे पहले तो मैं सारे participants को thank you बोलना चाहता हूँ. आप लोगों ने Sunday morning को time निकालकर ये webinar join किया. But I am very confident that we are going to make best use of your time because we have a very energetic and positive personality joining us as a speaker, Mr. Nilesh G. Parthani. So let me introduce Nilesh Ji to all of you. Nilesh Ji has done engineering in BE Polymers and then he has done MBA in marketing. He started his journey in MNC, US based MNC, and soon realized that entrepreneurship has much more potential. And therefore he started
multiple businesses, and today he is into multiple businesses across industry. He is also an author and a life coach. He has won award in business reality show of CNBC Awaaz, Chote Business Bade Sapne in 2009. Also, he has written a book, Success Highway, which is based on life of successful entrepreneurs and is bestseller in its category. It is available in online and offline formats. Also, he has a vision of making 1 million entrepreneurs through his workshops. So with this, this is the introduction. And today we have a very important topic for discussion, which Palas already introduced, family business and Maheshwari youth, the way ahead. So before starting the discussion, I have a request to all the participants to be on mute during our discussion. Also, we have a Q&A session at the end of the after the discussion for 20 to 25 minutes, where we will take all the unanswered questions. So please write all your questions on the chat box. I will take that after the discussion. So with this, welcome Nilesh ji. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। तो नीलेश जी, आपका इंट्रोडक्शन देखने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि आप एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हो, एंड आपका जर्नी सुनने के लिए हम लोग सब एक्साइटेड है. सो वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर जर्नी एंड व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. सो जय श्री कृष्ण सौरभ जी, थैंक यू फॉर द generous introduction. I am really very happy today to be with all of you here. और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अतुल भाऊ का कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने अवेलेबल करवाया है माहेश्वरी यूथ के लिए, माहेश्वरी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, पूरी MBPM टीम का, MBPM स्कॉलर्स कमेटी का, मालू जी और सौरभ जी और आपकी जो पूरी टीम है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है. तो सबसे पहले आप सबको मेरा साधुवाद, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए. अराउंड 20 सेमिनार्स हो चुके हैं, वेबिनार्स, और बहुत अच्छी तरीके से ये चल रहे हैं. सौरभ जी, आपने मुझे कहा कि मैं शायद सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ. एक्चुअली ये टर्म मुझे पता ही नहीं थी, और मेरी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती गई तो कुछ बाय कंपल्शन, कुछ बाय चॉइस मैं करते गया. और जो टर्म है कि इसको सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ये मुझे काफ़ी लेट मेरे लाइफ में पता पड़ी. मेरी जर्नी को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो पढ़ाई में ठीक ठाक था, डिसेंट था. 10th में मेरिट आया था, 12th में मेरिट मेरा कुछ मार्क्स से लॉस्ट हो गया था. तो MIT पुणे में मुझे किसी ने बताया कि एक बहुत अच्छा कोर्स है पॉलीमर इंजीनियरिंग. तो मार्क्स तो ठीक ठाक थे 12th में, तो पॉलीमर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया. तो 4 साल लाहौटी हॉस्टल में रहा, MIT से पॉलीमर्स किया. 96 में पास आउट हुआ. बट ड्यूरिंग दोज 4 years मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद टेक्निकल फील्ड में मेरी रुचि नहीं है. मेरी रुचि जो है कहीं दूसरी जगह है, मैनेजमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में ही शायद मेरी रुचि है. तो मैंने दोनों एग्जाम्स उस वक्त लिखी, जैसे कि उस वक्त सभी लोग लिखते थे. GRE भी लिखा और CET भी लिखा. तो GRE में मुझे US में MS में एडमिशन मिल गया, और साथ ही साथ CET के थ्रू मुझे वाडिया इंस्टीट्यूट पुणे में MBA के लिए एडमिशन मिल गया. तो मैंने US का चांस होते हुए भी, चूंकि मुझे टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने वो ऑप्ट नहीं किया, और मैंने MBA किया मेरा वाडिया से. 98 आई पास्ड आउट, एंड इमीडिएट आफ्टर पासिंग आउट ये एक नया फूड MNC अमेरिकन आया था. उन्होंने इंडिया में जस्ट एंटर किया था. तो उस फूड MNC में मैं एज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेड फॉर द कंट्री मैं उनके साथ ज्वाइन हुआ. एंड अराउंड 1.5 year मैंने उन लोग के साथ काम किया. एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज एंड यू आर गेटिंग 1000 स्क्वायर फीट फ्लैट, और गाड़ी कंपनी ने दी थी, और उस वक्त मुझे 25,000 रुपया महीना सैलरी मिलता था. सो रियली हैप्पी, मुझे ऐसा लगा कि आई हैव अराइव्ड इन लाइफ. बट समहाउ आफ्टर 1.5 year मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली जो काफ़ी मेरे दिल को छू गई. मेरे फादर ने मुझे कहा कि यार तू MNC में काम तो कर रहा है, पर मैंने तुझे समोसा कचौरी बेचने के लिए इंजीनियरिंग या MBA नहीं करवाया. तो मुझे उनको समझाना पड़ा कि ये समोसा कचौरी नहीं है, बर्गर
बट बात यूं थी कि मुझे भी ऐसा लगा कि अगर मैं ज्यादा देर तक इस माहौल में अगर रुक गया तो मुझे शायद इस चीज की आदत हो जाएगी, मैं कंप्लेसेंट भी हो जाऊंगा, और कंफर्ट जोन में एक बार चले गया तो मेरा जो ड्रीम है, जो मुझे खुद को एंटरप्रेन्योरशिप करना है, वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इमीडिएटली आई लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड केम बैक टू माय फैमिली। एंड उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शन थे मेरे फैमिली बिजनेस में। तो मेरे फादर जो थे वो सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एग्रो इनपुट्स का बिजनेस चलाते थे, एंड मेरी मदर जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाती थी एक बहुत छोटे लेवल पे, लाइक वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और जेडपीस को थोड़ा बहुत सप्लाई स्कूल यूनिफॉर्म्स का करती थी। तो मेरे फादर का जो बिजनेस था एग्रो इनपुट का, वो उस वक्त काफी ट्रबल में था, क्रेडिट ओरिएंटेड बिजनेस था। और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो इंजीनियरिंग एमबीए करने के बाद एमएनसी में पढ़ने के बाद एंड जस्ट आउट, और उसको इमीडिएटली ऐसा नहीं लगता कि वो खेती किसानी के बिजनेस में जाए। तो बट नेचुरल मैंने कहा कि मैं जो मेरे मदर का जो बिजनेस है स्कूल यूनिफॉर्म्स वाला, उसको मैं परस्यू करूंगा और शायद उसमें मैं कुछ कर पाऊँ। तो उसी वक्त कोइंसिडेंटली एक स्कीम आई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वो लोग जो बीपीएल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको फ्री यूनिफॉर्म दे रही थी गवर्नमेंट सभी जेडपीस के अंदर। तो स्कीम ये थी कि क्लॉथ जो है गवर्नमेंट देगी, कपड़ा गवर्नमेंट देगी, आपको स्टिचिंग करना है एंड आपको गवर्नमेंट को सप्लाई करना है। अच्छा स्कीम था, ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व नहीं था, केवल मैन पावर चाहिए था। मैन पावर हम लोग के पास में उस वक्त काफी था। तो शुरुआत में फर्स्ट ईयर में 6 to 7 जेडपीस का हमने काम किया। फिर क्योंकि हमारा क्वालिटी अच्छा था और हम लोग का रेट्स हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव लेते थे, तो सेकेंड ईयर वो संख्या बढ़ते बढ़ते 15 हो गई। एंड इन द ईयर 2001 मैंने ये सोचा कि इसके साथ मैं कुछ और करूं। तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं बचपन के, ब्रजेश जी सादानी, जिन्होंने मेरे साथ ही पॉलीमर इंजीनियरिंग किया था, उन्होंने भी एमबीए किया था। फिर हम दोनों ने सोचा कि हम एक मिनरल वाटर का प्लांट पुट करते हैं, तो हमने एक छोटा सा मिनरल वाटर का प्लांट भी स्टार्ट किया। तो मिनरल वाटर के प्लांट जो है हमने 2 years हमने रन किया। इन द ईयर अराउंड 2003 उसमें गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस बहुत बढ़ने लगा था, क्योंकि हमारा इकलौता एक प्लांट था इस एरिया में। तो एफडीए वाले और वेट एंड मेजरमेंट वाले और बाकी सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लगातार आते थे, हमारे सैंपल लेते थे। हालांकि हमारे सैंपल जो है वो क्वालिटी में पास होते थे, पर फिर भी जो है इन लोगों का लगातार आना जाना शुरू रहता था। और जब पूछने पर बात ही आती थी कि भाई साहब हम क्या करें, आपका ही एक यूनिट है यहाँ पे, तो हमको दिन भर आना पड़ता है। तो हमने एक दिन डिसाइड किया दोनों ने कि जिस फील्ड में गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है उस फील्ड में हम काम नहीं करेंगे, और हमने इमीडिएट उसको शट डाउन करने का फैसला लिया। हमने वो यूनिट शट डाउन कर दिया। तो मेरा एक बिजनेस मिनरल वाटर का शुरू हुआ, बंद हो गया। इसके साथ मेरा स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से उस वक्त चल रहा था। और तभी एक अपॉर्चुनिटी मुझे और आई कि इंडियन ऑयल का ऐड आया कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए। तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। मुझे लोगों ने बहुत बोला कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए बहुत ज्यादा आपको जैक लगाना पड़ता है, बाकी चीजें करनी पड़ती है। मेरे पास तो वो सब कुछ नहीं था, पर डिसाइड किया कि चलो ट्राई तो करके देखते हैं। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड कोइंसिडेंटली वी वर अवॉर्डेड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड आई एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ केम ईयर 2004। 2004 में मेरा यूनिफॉर्म का बिजनेस वी हैव ग्रोन अप टू 35 जेडपीस। लाइक पूरे महाराष्ट्र में केवल 2 या 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें हम लोग काम नहीं कर रहे थे, बाकी 35 जेडपीस में हम काम कर रहे थे। एंड वी वर स्टिचिंग अराउंड 3.5 लाख यूनिफॉर्म्स, और नियर अबाउट 350 वर्कर्स हमारे साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। एंड मिनिस्ट्री चेंज हो गई 2004 में। नए मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने देखा, बड़े कद्दावर नेता है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के, आज भी हैं। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये छोटी छोटी स्कीम हम नहीं चलाएंगे, हम बेनिफिशियरी के अकाउंट में सीधे पैसे डालेंगे। और उन्होंने वो स्कीम बंद कर दी। एंड 2004 में एक बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस, बहुत जिसको हमने बहुत अच्छे लेवल पर लेकर गए थे, वो बिजनेस मेरा डाउन हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट डे आई वाज अनएम्प्लॉयड एक्चुअली फ्रॉम दैट यूनिफॉर्म बिजनेस। तो 2004 आई लेफ्ट विथ ओनली वन बिजनेस, दैट वाज माय एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन। देन सडनली वन डे माय वाइफ ज्योति, उसने एक ग्लास पेंटिंग बनाई, श्रीनाथ जी का पेंटिंग बनाया था। एंड शी इज बीएफए फ्रॉम सोफिया मुंबई। और वो पेंटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे कहा कि क्यों नहीं हम एक और बिजनेस शुरू करते हैं ग्लास डिजाइनिंग का। जाना पड़ेगा, बोला कि नहीं उसको। सर ग्लास डिजाइनिंग वाला जो बिजनेस था तो उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं था। हमारा जो पिछली जो मेरी मुझे लगता है कि 6-7 जनरेशंस जो थी उसमें किसी ने ग्लास का काम कभी किया ही नहीं।
हमको कुछ पता नहीं था, बट हमको ऐसा लगा कि ये फील्ड अच्छी है, तो उस फील्ड के बारे में हमने रिसर्च किया, उसका नॉलेज लिया। ज्योति ने जाकर कुछ जगहों पर ट्रेनिंग ली एंड 2004 में हमने हमारा डिजाइनर ग्लासेस का बिजनेस स्टार्ट किया, एक छोटी सी जगह पे, 10 बाय 10 की जगह थी घर में, उससे स्टार्ट किया। वो बिजनेस अच्छा चला। 2005 में हम MIDC शिफ्ट हुए और थोड़ा बड़ा स्पेस हमने लिया एंड बहुत अच्छी तरीके से अब मेरे 2 बिजनेसेस चलने लगे थे। देन केम ईयर 2008। ईयर 2008 में CNBC आवाज एक नया चैनल शुरू हुआ था इंडिया में एंड CNBC आवाज ने किशोर जी बियानी, फ्यूचर ग्रुप के जो फाउंडर है, वो मेरे गुरु हैं, उनके साथ मिलकर एक बिजनेस रियलिटी शो छोटा बिजनेस बड़े सपने लॉन्च किया था। और उसका फॉर्मेट ये था कि इफ यू हैव अ गुड आइडिया यू कम टू अस, देन वी विल गिव यू फंडिंग, वी विल पार्टनर विथ यू एंड विल मेंटोर यू। एंड ये अपने आप का एक बहुत नया प्रयोग था भारत में। अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अमेरिका की भी बहुत सारे रियलिटी शो, बिजनेस रियलिटी शो, शार्क टैंक और ये हम सब लोग देखते हैं, बट इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में एंड हम लोग ने अप्लाई किया। तो अराउंड 2500 लोगों ने अप्लाई किया पूरी इंडिया से एंड फिर उसमें सिलेक्ट करते करते 2500, 1000, फिर उसमें 500, 100, 50, लास्ट 14 लोगों में हमारा सिलेक्शन हुआ। एंड एक बहुत बड़ा पैनल CNBC आवाज के स्टूडियो में, उसने उन 14 लोगों का पूरा इंटरव्यू लिया, इन डेप्थ इंटरव्यू, अराउंड 1 to 1.5 आवर तक वो इंटरव्यू चला एंड जिसमें किशोर जी खुद थे, संजय पुगलिया जो उस वक्त CNBC आवाज के एडिटर थे वो थे, अब्राहम इसो करके SME यूनिट के हेड थे, बैंकिंग के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो थे, कुछ फ्यूचर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स थे, राकेश भाई जुद्दीनवाला थे जो शेयर्स में टाइकून है आज भारत के। तो ये सब लोग थे और उसमें से उन्होंने 4 लोगों को सिलेक्ट किया एंड फॉर्चुनेटली उन 4 में हम थे। और फिर यहाँ से मेरा, जिसे कहा जाता है कि ड्रीम रन जो है वो स्टार्ट हुआ। केबी सर का मुझे बहुत मेरी लाइफ में एनकरेजमेंट मिला, उनका बहुत ज्यादा गाइडेंस मुझे मिला। और होम टाउन जो फ्यूचर ग्रुप के फर्नीचर फॉर्मेट स्टोर है, उसमें हम लोगों ने हमारे डिस्प्ले लगाने शुरू किए। तो फर्स्ट डिस्प्ले मुझे आज भी याद है, कोलकाता में हमारा लगा था। फिर कोलकाता के बाद सेकंड डिस्प्ले मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर, ऐसे होते हैं नियर अबाउट 12 होम टाउन्स में, जो कि 12 होम टाउन्स थे, 12 होम टाउन्स में हमारा प्रेजेंस रहा। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि हम कमर्शियली तो हम एक बहुत अच्छे साइज के बन चुके थे, पर हमको जो मेंटोरिंग मिली, जो गाइडेंस मिला केबी सर का और फ्यूचर ग्रुप की टीम का, वो बहुत जबरदस्त था। तो वहां पर हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से प्रोडक्ट डिजाइन होना चाहिए, किस प्रकार से उसका प्राइसिंग होना चाहिए, किस प्रकार से प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस प्रकार से प्रोडक्ट को रखना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए ताकि कस्टमर का अटेंशन ग्रैब। बहुत सारी चीजें हमने वहां सीखी और नियर अबाउट 2008 से 2012-13 हम लोग फ्यूचर ग्रुप के साथ हमने बहुत अच्छा काम किया। तो अभी 2-3 बिजनेस तो सेट हो चुके थे एंड अराउंड 2011 में एक हमारे जनरल मैनेजर थे इंडियन ऑयल के, तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा, आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आप इतना अच्छा काम करते हो, तो व्हाई डोंट यू बिकम अ ट्रांसपोर्टर फॉर IOCL एंड व्हाई डोंट यू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सर्विसेज टू IOCL। एंड ये मुझे सुझाव उनका अच्छा लगा, क्योंकि 365 डेज का बिजनेस था, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए काम करना था। पर मुझे एक्चुअली फिर से वही बात थी कि उस फील्ड का कुछ मुझे नॉलेज नहीं था, और जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर्स थे उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि हम उस फील्ड में आए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम उस फील्ड में आ गए तो उनको काफी टफ कॉम्पीट करेंगे। तो उन लोगों ने काफी डरा दिया था कि साहब ये तो ड्राइवर लोगों की लाइन है, आपको किस प्रकार से लोगों से बात करनी पड़ती है, बहुत टफ है। बट फिर भी हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम करेंगे। और 2011 में हमने एक छोटा फ्लीट इंडियन ऑयल के लिए ट्रांसपोर्टेशन का स्टार्ट किया। फिर 2012, 13, 14 हम हमारे ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट में गाड़ियां ऐड करते गए एंड दिस इज ईयर 2020 एंड we are of a good size now, transporter of Indian Oil. Then 2013 I started writing. मैंने बिजनेस के ऊपर लिखना चालू किया, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखना शुरू किया, काफी सारे एंटरप्रेन्योर से मैं मिला एंड 2015 में मेरी बुक जो है सक्सेस हाईवे मैंने लिखी। इसको प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश किया, जो भारत की सबसे बड़ी हिंदी प्रकाशन संस्था है। केबी सर ने
इस बुक को फॉरवर्ड दिया। ये बुक अच्छी चली, आज भी अवेलेबल है सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म पर। एंड फिर 2017 में मुझे ऐसा लगा कि कुछ सोसाइटी को मैंने वापस देना चाहिए, क्योंकि ये हर एंटरप्रेन्योर का मुझे लगता है ये धर्म है कि जिस सोसाइटी ने उनको आगे बढ़ाया उस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो 2017 में हमने अनुभव आनंदा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। इस इंस्टीट्यूट में मोर देन 5000 मोटिवेशनल बुक्स हमने रखी है फॉर ऑल एज ग्रुप्स, राइट फ्रॉम ईयर 5 ईयर टू 85 ईयर, सबके लिए यहाँ पर बुक्स अवेलेबल है। एंड वी हैव अ मेडिटेशन सेंटर ओवर हियर एंड लाइफ कोचिंग के प्रोग्राम्स हम यहाँ कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट जिसको आप कह सकते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप, और ये जो छोटा सा जर्नी है मेरा with the help of family, with the support of all my mentors, with the grace of God, ये चल रहा है। वाह, यस सर, एक्चुअली आपका जर्नी के को सुनकर एक चीज मुझे जो रियलाइज हुई है कि एट द डे वन वी डोंट नो एवरीथिंग, वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग थिंग्स एंड कीप ऑन थिंकिंग दैट हाउ वी कैन एक्सपांड और हाउ वी कैन डाइवर्सिफाई, कैसे हम कुछ नया कर सकते हैं, एंड एट द एंड how we can give back to the society. So very inspiring story, sir, and thanks a lot. With this, sir, so जब हमारा पहले discussion हुआ था before this webinar, एक point हमने जो discuss किया था, this is very high time to discuss this issue that Maheshwari young youth are not joining back their business. They are not coming back to their hometown, not, you know, they prefer MNC job before this. So उसके ऊपर क्या राय है सर आपका, क्या हमारे ऑडियंस के लिए what do you want to message? Yes सरोज जी, वेरी वैलिड पॉइंट। जहां तक हाई टाइम की बात है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अर्जेंट है ये कि एंटरप्रेन्योरशिप में माहेश्वरी यूथ नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हाई टाइम से भी ज्यादा ये लाइटनिंग इमरजेंसी वाली बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कोई लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम आपके सामने रखता हूँ, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, ओयो, इंडिया मार्ट, लेंसकार्ट, और अब आप इनके फाउंडर देखिए। फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे सचिन एंड बिन्नी बंसल, इन्होंने अभी अभी ये कंपनी बेच दी थोड़े दिनों पहले। स्नैपडील रोहित बंसल, ओला भाविश अग्रवाल, ओयो रितेश अग्रवाल, मिंट्रा मुकेश बंसल, लेंसकार्ट पीयूष बंसल, इंडिया मार्ट दिनेश अग्रवाल, शॉपक्लूज संदीप अग्रवाल, जोमैटो दीपिंदर अग्रवाल, और नाप्तोल मनु अग्रवाल। और आपको पता है अमेज़न इंडिया का चीफ कौन है? दैट इज अमित अग्रवाल। तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष? इसमें से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम का जिस प्रकार से व्यवस्थित प्रकार से जो लिवरेज अग्रवालों ने लिया है, वो लिवरेज हम माहेश्वरीज लेने में पीछे रह गए। आज ये जो टॉप 20 कंपनीज के अंदर जो $1 मिलियन कंपनीज है सभी, जिनका मैंने नाम बताया है, सभी के फाउंडर अग्रवाल से। और अगर हम माहेश्वरी की बात करते हैं तो एक ही ई कॉमर्स कंपनी हमारे ध्यान में आती है, वो है firstcry.com, जो सुपम जी माहेश्वरी की बनाई हुई है। उसके अलावा दूसरा कोई माहेश्वरी ई कॉमर्स कंपनी ऑफ द हैंड अभी एकदम से दिमाग में आता नहीं। ऐसे बहुत सारे हो गए छोटे या मीडियम साइज के, बट अभी एकदम से कि बहुत ज्यादा हाईली सक्सेसफुल ऐसा कोई हमारे दिमाग में नहीं आता। तो प्रॉब्लम क्या हुई? जो काम अग्रवालों ने कर लिया, जो काम जैन लोग कर रहे हैं, जो काम खंडेलवाल कर रहे हैं, तो वो माहेश्वरीज करने में अनसक्सेसफुल क्यों रहे, या माहेश्वरीज उनसे पीछे क्यों रह गए? तो इसका अगर हम रीजनिंग सोचेंगे, इसके बारे में अगर हम देखेंगे, तो हम पाएंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो आज हमारे समाज को घेरे हुए, बहुत सारे फैक्टर, और बहुत सारे फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले हमको थोड़ा सा हमारी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा परदादा किस प्रकार से राजस्थान से निकले थे, और किस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर वो गए, हजारों किलोमीटर दूर वो गए, और पूरी दुनिया में वो छा गए। जहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, जहां पर उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर हमको 2 पैसे मिल सकते हैं, उस जगह वो गए, और उस जगह जाकर उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा लाइफ यहाँ पर कैसा रहेगा, या यहाँ पर मेरे बच्चों की स्कूलिंग कैसे होगी, या यूं कहे कि मुझे यहाँ नाइट लाइफ क्या मिलेगा, ये सोचा ही नहीं। तो स्टेट ऑफ माइंड जो था वो फ्रूगल स्टेट ऑफ माइंड था। उनका कहना था कि मोटो खाओ मोटो पहनो तो कभी ना जाए टोटो।
राइट? तो फ्रूगल स्टेट ऑफ माइंड। और लोग बोलते थे कि जहां न जाए गाड़ी वहीं जाए मारवाड़ी, कि भैया जहां पर गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती है वहां मारवाड़ी पहुंच जाता है। तो एक सब्जी, उसके साथ प्याज, और अगर अचार या उनको मिल जाता था रोटी तो बहुत अच्छा उनको लगता था। तो ये स्टेट ऑफ माइंड हमारे बुजुर्गों का था। फिर हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करी, फाउंडेशन बनाया, फिर नेक्स्ट जनरेशन ने उसके आगे मेहनत करी, फाउंडेशन बनाया, उसके आगे तीसरी जनरेशन आई, उन्होंने उसको सेव किया, उसको एक्सपैंड किया, और अब फिर यंग जनरेशन आ गई। तब यंग जनरेशन जब आ गई तो यंग जनरेशन के सामने जो है वो 56 भोग की थाली परोसी हुई थी, और स्टेट ऑफ माइंड जो था वो एबेंडेंट था। अब जब आदमी का स्टेट ऑफ माइंड एबेंडेंट हो जाता है, जब उसके ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो बहुत सी बार वो सही चॉइसेस नहीं कर पाता। और फिर हमारी यंग जनरेशन ने क्या किया कि हमारी यंग जनरेशन ने उसके अंदर फिल्टर लगाने शुरू किए। फिल्टर लगाने इन द सेंस, उन्होंने ये कहा कि भैया मेरे बच्चों के लिए अगर इंटरनेशनल स्कूल रहेगा तो मैं वहां रहूंगा, अगर मुझे बहुत अच्छा लाइफ मिलेगा, लाइफस्टाइल मिलेगा तो मैं वहां रहूंगा, मुझे घूमने फिरने के लिए सैटरडे संडे जब ऑफ रहता है तब मॉल चाहिए, बाकी की चीज चाहिए, वह अगर चीजें रहेगी तो मैं वहां रहूंगा। और फिर हमारी यंग जनरेशन का नारा बन गया, जहां जाए हवाई गाड़ी केवल वही जाए यंग मारवाड़ी। और आप देखेंगे, और आप जब एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि भारत के 5 शहर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद और गुरुग्राम, और अमेरिका के सिलिकॉन वैली, अगर आप किसी को पूछेंगे ना तो 95% पेरेंट्स का जवाब ये 5 शहर कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो वहां पे इन 5 शहरों में अमेरिका में सिलिकॉन वैली के अंदर है। उसके अलावा सिर्फ 5% लोगों के बच्चे जो है बाकी जगहों पे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या है पूरा दोष यंग जनरेशन का है कि वो इतनी हाई चॉइसेस कर रहे हैं, वो वापस नहीं आना चाहते अपने यहाँ के बिजनेसेस पे, अपनी फैमिली बिजनेसेस पे, अपने होम टाउन में वापस नहीं जाना चाहते? तो फिर से अगर हम देखेंगे तो इसमें जो फैमिली वैल्यूज उनको दे रहे हैं, हम जो सीड उनके माइंड में सो कर रहे हैं बचपन से, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो होता यह है हमारे माहेश्वरी कम्युनिटी में स्पेसिफिकली कि हम लोग बहुत मेहनती हैं, और बहुत मेहनती होने के कारण हम क्या करते हैं कि हम संडेज को भी बिजनेस करते हैं। हम जो है आवर्स नहीं देखते, सुबह के वक्त भी बिजनेस चालू है, रात को 11-12 बजे तक दुकान पे बैठ रहे हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हम खूब मेहनत करेंगे तो हमारी खूब तरक्की होगी। तो ये बात कुछ हद तक सही है, पर उसका हुआ क्या? उसका हुआ ये कि घर में जो माहौल बना, तो घर में बच्चा देखने लग गया कि पापा जो है वो संडेज को भी काम करते हैं, वो हमको टाइम नहीं देते। मम्मी बोलते रहती है कि मुझे बाहर आप ले जाइए घुमाने के लिए कहीं, या कोई जगह पे हमको जाना है, पर उसके लिए उनके पास समय नहीं है। एंड ही इज ऑलरेडी टेंस, वेरी टेंस्ड। जब भी आते हैं तो बिजनेस की बात डाइनिंग टेबल पर चलती है, तो बहुत सी बार जो है बिजनेस के बारे में नेगेटिव बातें ही ज्यादा होती है कि इस पार्टी के पास उतनी उधारी रह गई है, या बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा है, या अभी टैक्सेशन का इतना देना है। तो बच्चे ने क्या कर लिया कि बचपन से बिजनेस इज इक्वल टू स्ट्रेस, ये इक्वेशन उसके माइंड में बैठ गया। हमने कभी ये इक्वेशन हमारी यंग जनरेशन के माइंड में बैठा या ही नहीं कि बिजनेस इज इक्वल टू प्लेजर। हमने कभी उनको ये नहीं बताया सिक्के का दूसरा पहलू कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसके कारण आप एक बहुत अच्छा लाइफ जीने में सक्षम हुए हो। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसके लिए आप इतना अच्छा रह पा रहे हो, इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, आप इतनी अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हो। ये कभी हमने हमारी यंग जनरेशन के माइंड में फिट नहीं किया। तो यंग बच्चा क्या सोचने लगा, जब 15-16 साल का हुआ, थोड़ी बहुत सोचने समझने की उसकी ताकत विकसित हुई, तो वो सोचने लगा कि बॉस जब मैं बड़ा हूंगा ना तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा, क्योंकि बिजनेस में मेरे फादर ने अपना पूरा जिंदगी लगा दिया और बिजनेस में उनको स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं मिला। हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है कि आज की डेट में जॉब में बिजनेस से भी ज्यादा कभी कभी स्ट्रेस है, या बिजनेस के बराबरी का स्ट्रेस है, पर ये बात उसे तब रियलाइज नहीं होती। उसको जब वो एंट्री करता है जॉब फील्ड में या प्रोफेशनल फील्ड में दूसरी, तब उसे बात रियलाइज नहीं होती। तो बिजनेस इज इक्वल टू स्ट्रेस के समीकरण के कारण ये जो हमारी यंग जनरेशन है वह बहुत हद तक जो है वो जाने लगी। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि हमारा समाज जो है एजुकेशन के अंदर बहुत आगे हो गया। आज अगर आप देखेंगे तो मारवाड़ी सोसाइटी में
माहेश्वरी जो है वो एजुकेशन के अंदर सबसे आगे है। नंबर ऑफ सीएज हमारे सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स हमारे सबसे ज्यादा है। आईआईटीज में जितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और जितने पास होते हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा रेशियो हमारे माहेश्वरी लोगों का है। और फिर हम क्या करने लग गए, हम लोग देखने लग गए हमारे आसपास कि भैया हमारा बच्चा बड़ी स्कूल में जा रहा है, सीबीएसई में पढ़ रहा है, आईसीएसई में पढ़ रहा है, और उसके साथ वाले क्या कर रहे हैं, तो उसके साथ वाले या तो नीट की स्टडी कर रहे हैं या तो वो आईआईटी जेईई की स्टडी कर रहे हैं। और फिर बच्चा भी बोलने लगा कि पापा मुझे भी आईआईटी करना है। तो फिर हमने भी कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, आप भी आईआईटी करो, आपके जो फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं वहां जाओ। और फिर जो है आईआईटी के लिए अच्छा कोचिंग क्लास कहाँ है, तो कोटा में है। तो मदर जो है फिर 2 साल 3 साल के लिए, या कोई मेरी माताएं बहनें तो 4 साल उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया अपने लाइफ के लिए। वो कोटा में अपने बच्चे के साथ है और फादर जो है वो यहाँ पे ढाबे पे रोटियां खा रहे हैं। तो ये रियलिटी हमारे समाज की बन गई। और हमारे समाज के काफी बच्चे जो है वो आईआईटीज में जाने लगे, जो जिनको आईआईटी नहीं मिला वो एनआईटी में जाने लगे। और आईआईटी का मैं आपको एक बहुत सीधी मैं आपको बात बताऊं कि करीब 13 लाख बच्चे लास्ट टू लास्ट ईयर आईआईटी के लिए उन्होंने अटेम्प्ट किया था। इस साल करीब 10 लाख बच्चों ने किया था, क्योंकि आईआईटी से अब भ्रम निराश लोगों को होने लगा है, टूटने लगा है। अब 10 लाख लोगों के 20 सीटें केवल ओपन क्लास की है 10,000, सॉरी ओपन क्लास की नहीं, टोटल सीटें 10,000, और इसमें ओपन क्लास की सीटें हैं केवल 4,500। और जब बच्चा मेहनत करता है, वो जब 3 साल 4 साल उस चीज पे लगता है, और जब वो फाइनली जब 4,500 के अंदर आता है, तो उसको ये लगता है कि भैया मुझे केवल आईआईटी का स्टैम्प चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स मिल रहा है वो मेरे लाइकिंग का है नहीं है वो मैं बाद में देखूंगा, आई जस्ट हैव टू गेट इनटू इट समहाउ। और फिर क्या हुआ कि हमारी यंग जनरेशन का जो फोकस है वो फोकस हट गया। हमारे बिजनेस के साथ उस फोकस का कभी अलाइनमेंट हुआ ही नहीं। आप देखिए कि अगर मेरा बिजनेस रेस्टोरेंट का है और अगर मेरा बच्चा आईआईटी कर रहा है, तो बट नेचुरल मेरा रेस्टोरेंट जो है वो आगे जाने वाला नहीं है, मुझे उसको इस जनरेशन में ही क्लोज करना है। अगर मेरा बिजनेस कपड़े का है, टेक्सटाइल का है, और अगर मेरा बच्चा अगर डॉक्टर बन रहा है सपोज, तो मेरा जो बिजनेस है वो आगे नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए या ये चीजें गलत है, बिल्कुल नहीं। मैं एक फैमिली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं कि अगर फैमिली बिजनेस को हमको बढ़ाना है तो हमको यंग जनरेशन को जो है वो हमारे बिजनेस के फोकस के जैसा, उसके अलाइनमेंट में जो एजुकेशन है वो हमको दिलवाना पड़ेगा। तो अगर मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, अगर मेरा फूड स्टफ का बिजनेस है, तो मैं मेरे बच्चों को होटल मैनेजमेंट कराऊं, कि होटल मैनेजमेंट करेगा, उसका अच्छा एजुकेशन लेगा, और फिर आकर मॉडर्न चीजों के साथ मेरे बिजनेस का विस्तार करेगा। तो ये चीज हम लोग भूलते जा रहे हैं। और फिर क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टेकिंग डिग्री, बच्चा जो है उसके पास ऑप्शन होते हैं कि आइदर ही गो टू सम एमएनसी और ही गो टू अब्रॉड फॉर द हायर एजुकेशन। और जब अब्रॉड जाता है, हायर एजुकेशन करता है, उसके बाद जो है ना वापस आने वालों की संख्या केवल 2% होती है। मुझे पता नहीं कि वहां पर भी उनके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वापस नहीं आने के, बट केवल 2% लोग वापस आते हैं और यहाँ पर कुछ अपना सेटअप करते हैं। 98% लोग जो है वहीं रह जाते हैं। और आप देखिए आज बहुत बड़ी शोकांतिका हमारे माहेश्वरी समाज में है कि आप किसी से भी बात करेंगे तो यही बोलेगा कि बच्चा कहाँ है, तो बच्चा मेरा यूएस में है, मेरा बच्चा यूरोप में है, मेरा बच्चा यूके में है, या किसी एमएनसी में जॉब कर रहा है। और पापा आप क्या कर रहे हो? तो पापा क्या कर रहे हैं कि पापा कर रहे हैं कि ये जो बिजनेस उनका है वो लास्ट जनरेशन वो है जो बिजनेस चला रहे हैं, तो वो बिजनेस वाइंड अप कैसा किया जाए उसका प्लान कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो है हमारा माहेश्वरी समाज जो है वो बिजनेस में से, एंटरप्रेन्योरशिप में से खत्म होते जा रहा है। और इसका जो अपोजिट है, सिंधीज जो है, पंजाबीज जो है, वह बिजनेस में आगे आ रहे हैं, वो अपने बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन ले रहे हैं और अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो एजुकेशन जो है, जो हमारी यंग जनरेशन को हम दे रहे हैं, उसको हम जो है अलाइन रखें हमारे बिजनेसेस के साथ, उसको फोकस्ड रखें, या एटलीस्ट कम से कम हमारे यंग जनरेशन के माइंड में बचपन से हम एक ये तो बिठा दें उनके माइंड में कि आपको आगे चलकर जो है एंटरप्रेन्योरशिप करना है, आपको इसके अंदर ही आपको अपना करियर बनाना है। फिर अगला पॉइंट जो आता है फैमिली का, कि बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे
मेरे क्लाइंट्स मैं देखता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में, फैमिली बिजनेस के फील्ड में मैं काफी वर्षों से वर्क कर रहा हूँ, वो जाते भी है अपने घर वापस। वो अपना जॉब, अपना खुशी जॉब छोड़ देते हैं और वो अपने घर में वापस जाते हैं। पर जब घर में जाते हैं तो क्या होता है कि जो फैमिली की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, तो फैमिली कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर वो एडजस्ट नहीं कर पाते। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि पहले के जमाने में क्या होता था कि एक पिताजी थे, पिताजी के 3 बेटे थे। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तीनों बेटों ने बिजनेस में अपने अपने रोल संभाल लिए, काम बढ़िया चला। पर अब इन 3 बेटों के 2-2 बेटे आगे और हुए और टोटल बिजनेस के अंदर 3 और 6 9 और पिताजी 1, 10 लोग हो गए। बट अब अगर उन 6 बच्चों के रोल्स अगर बिजनेस में डिफाइंड नहीं है कि उनको क्या करना है, तो वो 6 लोग अपने को सिग्निफिकेंट उस बिजनेस पर नहीं पाते। उनको खुद को इनसिग्निफिकेंट लगता है। उनको ऐसा लगता है कि हम कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन, कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हमारे फैमिली बिजनेस में नहीं दे रहे हैं। और फिर धीरे धीरे 1-2 साल वो फैमिली बिजनेस पर रुकते हैं और बोर होकर वो फिर से अपना जो उनका जो पहले का जो करियर शुरू था, वो करियर जो है वो उसको एक्सप्लोर करने में चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेशन प्लानिंग जो है वो हम लोगों की बहुत कमजोर हो रही है। फैमिली बिजनेस में रोल्स का जो डेफिनेशन है वो हम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमें अगर हमारी यंग जनरेशन को हमारे बिजनेसेस के ऊपर बुलाना है तो हमको हमारे बिजनेस के लिए 20 इयर्स आगे का विजन रखना होगा। जब से बच्चा इस दुनिया में आया है उस दिन से हमको सोचना होगा कि अगर मेरा बच्चा 20-25 इयर्स बाद अगर मेरे बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो उस किस कैपेसिटी में ज्वाइन करेगा, मेरा बिजनेस जो है वो कहां पर रहेगा, उसका रोल क्या रहेगा और किस प्रकार से मैं उसे अट्रैक्ट कर पाऊंगा मेरे बिजनेस की ओर। एंड टू बी वेरी फ्रैंक 95% हमारे माहेश्वरी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम वी थिंक अबाउट इट कि सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, रोल प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे बिजनेस का हमारा एक विजन होना चाहिए। फैमिली की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने प्रॉपरली जो है उस कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करना चाहिए और हमारी यंग जनरेशन को हमने अट्रैक्ट करना चाहिए कि वो आए और हमारे फैमिली बिजनेसेस आगे बढ़ाए। अगर ऐसा होगा तभी यह पॉसिबल है कि हमारा जो यंग दोस्त है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो फैमिली बिजनेस पर आएगी। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट द यंग जनरेशन कम टू फैमिली बिजनेस एंड मोस्ट ऑफ देम वुड गो फॉर कुशी जॉब्स एंड आफ्टर सम टाइम यू नो कि एक मुझे डर है इस बात का कि अगर 10 साल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम ये कहने लग जाए कि बॉस मेरे पापा भी बिजनेस करते थे, मेरे दादाजी भी बिजनेस करते थे, बट नाउ आई एम इनटू यू नो जॉब और समथिंग लाइक दैट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सौरभ जी। करेक्ट सर, टोटली अग्रीड सर। आपने जो करंट सिचुएशन को बताया है, दिस इज द रियलिटी। इनफैक्ट इफ आई रिफ्लेक्ट दैट इन माय लाइफ एंड माय जर्नी आल्सो, आई थिंक द सेम वे। सो इट इज वेरी कॉमन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग सर, जो आपने बताया कि सक्सेशन प्लान, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज इन MNC ऑल्सो देयर इज अ प्लान फॉर देयर माई नेक्स्ट रोल विल बी वॉट and what I will be doing after 5 years. Similarly, अगर business में वो हमें comfort मिले कि okay, हमारा business यहाँ है, हमें इधर जाना है, vision is clear, we have a defined role, so definitely एक मजा भी आएगा काम करने में and we will be motivated also कि एक direction है कि हमें कहाँ जाना है. That is one thing. Sir, but also one thing which generally a professional face problem is like they don't have mentorship. Or they don't know the step-by-step approach how they can start a entrepreneurship journey. So sir, kuch points from your side on this, how we can start a entrepreneurship journey. Yes, great point Saurabh ji. Yeah. ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है एक्चुअली, तो आई एम वेरी अफ्रेड कि ऐसा कोई इसमें फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की ब्यूटी ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि आप अगर ये चीजें आप करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ परम्यूटेशंस है, कॉम्बिनेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो किसी एक बंदे को फॉलो करनी पड़ती है
एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। और जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या होना चाहिए। पर उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि मिथ्स जो है हमारे माइंड में, जो ये मिसकॉन्सेप्शंस जो है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, वो मिसकॉन्सेप्शंस जो है पहले एंटरप्रेन्योरशिप जाने के पहले क्लियर होने चाहिए। तो बहुत सारे यंग फ्रेंड मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर आई वांट टू जॉइन एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज आई वांट टू बी माय ओन बॉस। मुझे लगता है सर इससे बड़ा मिथ इस दुनिया में कोई नहीं है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद का बॉस होता है, राइट। बट द थिंग इज एंटरप्रेन्योर को एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए। और जब आपको टीम को लेकर चलना है ना, जब आपको एक बहुत अच्छे लोगों के सेट को लेकर चलना है, तो आपको लोगों की सुननी ज्यादा पड़ती है। आपको आपके जो कॉलीग्स है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स है, जो टीम में आपने लोगों को रखा है, उन लोगों की आपको सुननी ज्यादा पड़ती है, बोलना कम पड़ता है। तो उस केस में आप केवल ऊपरी तौर पर तो आप बॉस हो, पर अंदरूनी तौर पर जो है वो आपको सुनना ज्यादा है। तो अगर किसी का माइंडसेट अगर ये है कि मुझे बॉस बनना है या मुझे बहुत बड़ा फ्रीडम मिल जाएगा, तो उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। फ्रीडम एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप बोलेंगे तो यस, फ्रीडम है कि मैं मेरे डिसीजंस खुद ले सकता हूं, क्योंकि मैं मेरे डिसीजंस के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हूं। आज के मंथ में मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, तो एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ फर्स्ट को वो रिफ्लेक्ट होगा मेरी बैलेंस शीट के अंदर। और फिर आगे जो है मुझे बाकी सब चीजें हैं, मेरी सैलरीज है, मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस है, बाकी की सब चीजें मुझे करनी है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो मुझे करनी है, और बहुत रिस्पॉन्सिबल और डिसीजन मेकिंग एक एंटरप्रेन्योर को करनी होती है। तो ये होता है कि भाई फ्रीली बहुत डिसीजन वो ले सकता, तो ऐसा भी नहीं है। एक मार्केट कंडीशंस के ऊपर, खुद के बिजनेस के ऊपर उसको डिसीजन लेने होते हैं। उसको एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर बनना होता है, उसको सब अपने सबऑर्डिनेट्स की सुननी पड़ती है। क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि केवल आपको आपका ही बोलने की आदत है, तो अच्छे लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। और अगर आपको आपसे स्मार्ट लोगों को साथ अगर रखना है, तो आपको सुनना जरूर पड़ेगा। और तभी आपका बिजनेस बढ़ पाएगा जब आप आपसे अच्छे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को अपनी टीम में रखोगे। तो एक टीम स्पिरिट होना चाहिए, एक यस फ्रीडम इसमें नहीं है। फ्रीडम अगर आप बात करें तो 24/7 एक एंटरप्रेन्योर को जो है वो काम करना पड़ता है। 24/7 आपको कब कौन सा आपका कस्टमर जो है वो क्या आपको रिक्वायरमेंट बता देगा, कौन सी इमरजेंसी आ जाएगी, वो आप नहीं बता सकते। मैं मेरी बात करता हूँ, लॉजिस्टिक्स बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया था शुरुआत में, तो बहुत छोटी थी हमारी कंपनी, तो सब ड्राइवर लोग जो है वो सीधे मुझे ही फोन करते। तो बहुत सी बार जब रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इमरजेंसी कॉल आते थे, तो मैं घबरा जाता था। और शुरुआत में ऐसा हुआ कि मेरे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रक पूरा लॉस हो गया, खत्म हो गया। एंड मैं बहुत डर के जो है रात को 2 बजे, 3 बजे दौड़ रहा हूँ गाड़ी लेके, और स्पॉट पे जा रहा हूँ, FIR हो रहा है, पंचनामा हो रहा है, ये सब चीजें होती थी। बट विद टाइम सब बातें समझ में आई, टीम बढ़ी, डेलीगेशन हुआ, एंड उसके बाद जो है सिस्टम के अंदर चीजें लगी। अब इसके बाद कभी हमारी गाड़ी के साथ कुछ ऐसी चीज होती है तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीज है, एक बहुत नॉर्मल सी प्रोसीजर है, अगले दिन सब पूरा हो जाता है। तो जो फ्रीडम है वो फ्रीडम नहीं होता एंटरप्रेन्योर को। 24/7 एंटरप्रेन्योर को जो है वर्क करना होता है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, पैशन जो है वो आपका है या नहीं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए सर, लोगों को लगता है कि धीरू भाई अंबानी का जर्नी देख लिया, जुकरबर्ग को देख लिया, बिल गेट्स को देख लिया, सुभाष चंद्रा जी को देख लिया, बियानी जी को देख लिया, लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। और लोग जो है वो कहते हैं कि सर दुनिया तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। एंड इसमें मेरे जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। आई एग्री टू इट, यस, बट द थिंग इज यू हैव टू बी रियलिस्टिक। और आपको देखना यह है कि क्या आपका पैशन उस चीज में है, क्या आप दिल से चाहते हो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है। अगर आपका पैशन एंटरप्रेन्योरशिप में है, तभी आप जो उसके अंदर जो तकलीफें हैं, उसके अंदर जो कठिनाइयां हैं, वो आप सह पाओगे, उसको सहन कर पाओगे। पर अगर आपका पैशन उस चीज में नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये कहाँ आ गया बॉस, मेरी सुख की जिंदगी थी, कॉर्पोरेट में बढ़िया था, मेरा फिक्स टाइमिंग का जॉब था, मैं जाता था आता था, राइट, मेरा रिपोर्टिंग बना के दे दिया, काम खत्म हो गया, मैं घर आता था, आई वाज डिस्कनेक्टेड। ये मैं कहाँ आ गया, कौन सी दुनिया में कि 24 आवर्स जो है मेरे पीछे लोग लगे हैं। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है, तो फिर आपको
इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। जब अगर हम हमारे लाइफ की बात करते हैं ना, तो हमारे लाइफ में देखिए सर सभी प्रकार के लोग हैं। हमारे लाइफ में उस प्रकार के भी लोग हैं जो आज साइकिल चला रहे हैं, आराम से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और वो सिटी से दूर है और बहुत सुकून के साथ जो उनको मिल रहा है उसके अंदर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। एक तरफ तो इस प्रकार के लोग हैं और दूसरी तरफ उस प्रकार के लोग हैं जो जेट सेट स्पीड से अपनी लाइफ जी रहे हैं। सुबह एक सिटी में लंच कर रहे हैं, शाम को दूसरी सिटी में डिनर कर रहे हैं और उनके लाइफ में सब कुछ फास्ट हो रहा है। तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि हमको किस प्रकार की लाइफ चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों प्रकार की लाइफ अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो आपको किस प्रकार की लाइफ चाहिए, आपको खुद के साथ बैठना होगा, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और बहुत सारे पैशन अगर आपके अंदर है और आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज में आ सकते हो तो आपने इसके अंदर जरूर आना चाहिए। इससे बेहतर चीज कोई नहीं है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है ऑलरेडी रनिंग, तो मैं चाहूंगा कि आप आपके फैमिली बिजनेस को अटेंड करना शुरू करें एट द टाइम जब आप जॉब कर रहे हैं उसी वक्त। तो अगर आपका एक वीक में 4-5 दिन आप जॉब कर रहे हो तो 2 days यू गो एंड यू सी योर फैमिली बिजनेस। आप वो फैमिली बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए, आप देखिए कि वो किस लेवल पर है। आप इसका प्लान बनाइए कि आप उसको किस लेवल पर लेकर जा सकते हैं, क्या हो सकता है उसके अंदर। और अगर आपको उसके अंदर संभावनाएं दिख रही है कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल पर आप उसको लेकर जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बिजनेस में आ जाना चाहिए इमीडिएट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फैमिली बिजनेस अब जो है वो आगे के लेवल पर नहीं जा सकता, ये बहुत इसको भी क्लोज डाउन ही करना पड़ेगा, तब तो और भी अच्छी बात है। तब तो आपको आ ही जाना चाहिए बिजनेस में। तब आपको बिजनेस में आकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए कि दूसरे वेंचर्स के अंदर आप जाए और अपनी जो फैमिली का नाम है ना बिजनेस के अंदर उसको अफलोट रखें। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरा ये विचार बहुत ट्रेडिशनल लगे, बट रियलिटी ये है कि अगर हमको लीगैसी चलानी है तो हमको इस प्रकार के डिसीजन लेने पड़ेंगे। और अगर आपको बिजनेस में आना है तो आपको मिनिमम मैं एडवाइस करूंगा यंग प्रोफेशनल्स को कि मिनिमम आप ये समझ के चलिए कि आपको 12 to 18 months, next 12 to 18 months you are not going to earn anything, just you have to expend out of your pocket, आपके जेब से आपको खर्च करना है। तो 12 to 18 मंथ का जो कॉर्पस है, जब आपके पास आपको ऐसा लगे कि ये हो गया है मेरा, उस वक्त आप जरूर आइए। और मैं आपको इस बात की भी गारंटी देता हूं कि जो लाइफस्टाइल हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं उसमें 12 to 18 मंथ्स का कॉर्पस होना बहुत मुश्किल है। पर अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा है, खुद के ऊपर विश्वास है, तो आप जरूर आ सकते हैं इस फील्ड में। बहुत एक्साइटिंग फील्ड है। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको मेंटोर जो है वो जरूर आपको रखने पड़ेंगे। गुरु जो है आपको चाहिए जीवन में, जो बोलते हैं ना गुरु का महत्व, तो गुरु जो है वो चाहिए। और हमारे जीवन में हर फील्ड के अंदर जो है गुरु होते हैं। स्पिरिचुअल हमारे गुरु होते हैं, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में होते हैं, हमारे लाइफ कोचेस होते हैं जीवन के क्षेत्र में। वैसे ही बिजनेस के क्षेत्र में भी हमको गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना प्रगति नहीं। मैं मेरा खुद का किस्सा बताता हूँ। मैं जब 2008 में केबी सर के साथ जुड़ा, तब मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़े व्यक्ति है, और मुझे कुछ ज्यादा खास उनके बारे में पता नहीं था। पर जैसे जैसे मैं उनके साथ मैंने इंटरेक्ट करना शुरू किया, मैंने सीखा लाइफ क्या है, फेलियर्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, बिजनेस कैसे चलाया जाता है। एक छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहूँगा। कोलकाता में जब मेरा फर्स्ट डिस्प्ले लगा था तो हम लोग वहाँ पे वॉश बेसिन और बोल जो ग्लास के है वो, और उसके ऊपर जो मिरर लगते हैं वो हम सेल किया करते थे। तो केबी सर ने मुझे कहा कि चल तेरा डिस्प्ले बता मुझे। तो मैंने हमारा डिस्प्ले उनको बताया और उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी के भाव आ गए। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत नाराज़ हो गए और वो कुछ बोले नहीं 2 मिनट। मैंने उनको कहा कि सर क्या हो गया? उन्होंने कहा नीलेश, ये 3500 का मिरर तू सेल कर रहा है, 1.5 by 2 साइज का छोटा सा मिरर है वॉश बेसिन बाउल के ऊपर लगाने का, और ये 3500 में तुम लोग यहाँ बेच रहे हो। ये जो मिरर है ये तो मैं मेरे घर में भी इतना महंगा मिरर कभी नहीं लगाऊंगा। और हमारे जो सीईओ थे महेश भाई शाह, उन्होंने कहा कि महेश ये क्या कर रहे हो यार,
ये चीज जो है, ये चीज आप सेल कर रहे हो यहाँ पे 3500 में, इतना छोटा सा मिरर, और महेश भाई जो है गालों ही गालों में हंसने लगे। मुझे समझ में नहीं आया, वो बात मुझे समझी नहीं कि महेश भाई क्यों हंस रहा है और सर क्यों इतने नाराज हो रहे हैं। बट क्योंकि मेरा बहुत फर्स्ट टाइम था इंटरेक्शन का उनके साथ, मैंने कुछ उनको ज्यादा पूछा नहीं। फिर 1-1.5 महीने का टाइम गया और उस 1-1.5 महीने में मेरे सारे मिरर वो सोल्ड आउट हो गए। इनफैक्ट इमीडिएट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आई कि वो मिरर आप भेजिए इमीडिएट। मैंने केबी सर को केवल उस वक्त इतनी बात कही थी कि सर ये मेरा एक्सपोर्ट क्वालिटी मिरर है, हैंडक्राफ्टेड मिरर है, और इसका जो प्राइसिंग है ये मिनिमम टू मिनिमम हमने यहाँ पे रखा है, आप देखिए इसको कस्टमर जरूर पसंद करेंगे। और उन्होंने फिर भी नई के अंदर सिर हिलाया था ताकि उनको ये बात जमी नहीं। फिर 1-1.5 महीने बाद सब मेरा अच्छा माल सेल हो गया, तो मेरी सर से मुलाकात हुई। मेरी मन में तो बात थी ही मेरे, तो इधर उधर की बातें होने के बाद मैंने सर को कहा कि सर वो जो आप बोल रहे थे ना कि मिरर्स जो बिकेंगे नहीं, बहुत कॉस्टली है, तो सर मेरा पूरा माल वो सेल हो गया। तो हंसे, मैं तब देखा और बोला कि मुझे पता था ये बात उसी दिन, पर मैं ये देख रहा था कि तेरा खुद के प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस कितना है, खुद के प्रोडक्ट के बारे में एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है। और अगर तुम्हारा खुद के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो तुम जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे उस दिन रिप्लाई किया था कि ये मेरा हैंडक्राफ्टेड मिरर है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है और ये चलेगा, और वो कॉन्फिडेंस देख के मैं खुश हुआ था। तो कितना भी बड़ा आदमी अगर तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट कर देना, पर अगर तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारा कमिटमेंट तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ है, अगर तुम्हारा खुद पे विश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो सर यही बात मैं आज मेरी यंग जनरेशन को कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा सोचो मत, डोंट ओवर थिंक कि क्या होगा बिजनेस में मैं जाऊंगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला जी। आप जॉब में रहोगे तो क्या होगा, जॉब में रहोगे तो क्या होने वाला है। तो आप जो एफर्ट्स लोगे जॉब में आगे बढ़ने के लिए, उसे थोड़े 10-20% एफर्ट ज्यादा ले लो सर बिजनेस के अंदर। तो कम से कम आज जब आप रिटायर हो गए 65 की एज में, तो नेक्स्ट डे जो है आपके पास कोई ऑफिस तो रहेगा। जॉब, मैंने आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैं बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का पक्षधर हूं, पर जो व्यक्ति जो जॉब्स करते हैं तो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास में ऑफिस नहीं रहता सर नेक्स्ट डे जाने के लिए कहीं, उनको घर में रुकना पड़ता है। और जो एंटरप्रेन्योर जो है वो 90 की एज तक भी जो है उसका ऑफिस रहता है, उसकी लीगेसी रहती है, और उसका जो उसका जो टोटल पूरा उद्योग जो है वो बना हुआ रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड बिजनेस इज अ बिग गेम, इट्स अ लॉन्ग गेम। आप कोई दो चीजों का कंपेयर नहीं कर सकते, कि जॉब और बिजनेस का कंपेयर नहीं कर सकते। एक एंटरप्रेन्योर की जो यात्रा होती है वो अगर उसने अर्ली स्टेज पे चालू की है तो 50-55 साल के ऊपर उसकी यात्रा होती है सर, और इतना बड़ा गेम होता है। तो जब आप अपने किसी एक चीज को आप अपने लाइफ के अगर जब 40, 50, 55 साल अगर आप देते हो तो आप उसका रिजल्ट देखिए, उसका रिजल्ट क्या रहेगा। एक लंबा गेम ये है, ये छोटा गेम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग इस बात को समझे, यंग जनरेशन इस बात को समझे कि इट्स हाई टाइम दैट वी कम बैक। और जो एमवीपीएम जैसी संस्थाएं हैं, जो माहेश्वरी महासभा है, मैंने जोधपुर अधिवेशन में भी मैंने ये बात प्रपोज करी थी कि अब जैसा कुछ पार्टियां चलाती थी हिंदुओं के लिए घर वापसी अभियान, वैसे हमको हमारी यंग जनरेशन के लिए अब चलाना चाहिए व्यापार वापसी अभियान। तो व्यापार वापसी अभियान बने, व्यापार जैसे आपने एक ग्रुप बनाया है, आप एंटरप्रेन्योरशिप के वेबिनार ले रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लोगों के मन में चेतना जगा रहे हैं, उस प्रकार के ग्रुप और बने पूरे भारत में, नेटवर्क हो माहेश्वरी समाज का, और जो यंग लोग हैं उनको गाइडेंस मिले। इस प्रकार का नेटवर्क हो कि जो आईटी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो आईटी फील्ड के जो उम्दा लोग हैं उनसे गाइडेंस ले सके, जिनको एफएमसीजी में जाना है वो एफएमसीजी के जो उम्दा लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनसे गाइडेंस ले सके। ये जो है ये फील्ड वाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपर्ट ग्रुप बनने चाहिए, और फिर उसके ऊपर उस एक्सपर्ट ग्रुप्स के लोगों ने यंग जनरेशन को गाइड करना चाहिए कि किस प्रकार से आप आए और अपना बिजनेस को ग्रो करें, ग्रूम करें, खुद को भी बढ़ाए और समाज को भी बढ़ाए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सौरभ जी। यस, तो थैंक यू नीलेश जी। सो इससे एक बात तो वेरी क्लियर है कि आप बिजनेस इसलिए मत स्टार्ट कीजिए कि आपको खुद का बॉस बनना है, तो वो तो नहीं होने वाला है। बिजनेस इसलिए स्टार्ट कीजिए अगर आपको आपका पैशन परस्यू करना है एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रोडक्ट्स, और यू कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट विच पीपल विल लाइक इट। तो दैट इज वेरी क्लियर। सर आपने अभी नेटवर्किंग की बात की एंड आपने बोला एक फोरम होना चाहिए महेश्वरी कम्युनिटी का,
जहाँ पर मीन्स पीपल कैन कम टुगेदर एंड री इंजीनियर एंड एक्सपांड देयर बिजनेस। तो सर क्या कोई फोरम्स ऑलरेडी है जहाँ पर young people can join and groom themselves? बहुत बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में कि एक ऐसा फोरम बने जहां पर पूरे माहेश्वरी यंग जनरेशन आए और वो नेटवर्क करे और ग्रूम करे खुद को। जैसा जैन लोगों का एक फोरम है वेरी फेमस, दैट इज जीटो, जैन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वैसा एक फोरम माहेश्वरी का मीटो करके स्टार्ट हुआ है, MITO। मुझे लगता है शायद 2-2.5 साल पहले इंदौर से इसकी शुरुआत हुई है। तो मीटो कुछ काम कर रहा है। उसके अलावा माहेश्वरी के अलग अलग जगहों पे, जैसे पुणे में भी महेश इंडस्ट्रियल ग्रुप है, आई थिंक महेश प्रोफेशनल फोरम है, बहुत अच्छा काम ये संस्थाएं कर रही है। अलग अलग सिटीज में जो है, चेन्नई के अंदर एक माहेश्वरी का एक अच्छा M सर्कल करके ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बट दीज आर ऑल सिटी सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। आज अब MEPM स्कॉलर कमिटी भी आप देखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप को इतना अच्छा बढ़ाते जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिटी सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका टाइम अब आ गया है कि इन्होंने नेशन वाइड हो जाना चाहिए और माहेश्वरी महासभा के साथ मिलकर नेशन वाइड इन लोगों ने माहेश्वरी तक पहुंचना चाहिए। हमारी यंग जनरेशन जो है उनको इंक्लूड करना चाहिए, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को देनी चाहिए। जैसे जीटो एक कॉन्फ्रेंस करती है, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस करती है जीटो, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि माहेश्वरी का भी एक 3 दिन का स्पेशली फॉर यंग जनरेशन एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। तो बहुत सारे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज जो है हमारी यंग जनरेशन को अवेलेबल हो जाएगी। बट अपार्ट फ्रॉम माहेश्वरी बहुत सारी नेटवर्किंग फोरम्स है, BNI है, बहुत सारी मैनेजमेंट एसोसिएशन हर सिटीज की है, बहुत सारे NGO है, रोटरी लायंस। तो ये लोग यहाँ पर भी बहुत अच्छा नेटवर्किंग हो सकता है। तो मेरा केवल यही कहना है कि जहां पर भी यंग व्यक्ति को नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसने छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग से बड़ी कोई चीज नहीं है सर। आपका जो काम पैसा नहीं कर सकता वो काम आपका दोस्ती कर सकती है, वो काम आपकी नेटवर्किंग कर सकती है। और जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है ना, उस फील्ड में तो आपने बिल्कुल नेटवर्किंग करनी चाहिए। जिस फोरम के ऊपर आपको नेटवर्किंग मिल जाए, जिस फोरम के ऊपर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर मुझे 10 लोगों से मेरा कांटेक्ट हो सकता है, उस फोरम पर आपने चले जाना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर का जो काम होता है ना, एक एंटरप्रेन्योर का बेसिक वर्क ही है नेटवर्किंग and to spread awareness about his brand, to spread awareness about his business and to look for newer opportunities। तो एक एंटरप्रेन्योर ने क्या करना चाहिए कि जैसे उसका बिजनेस ग्रो होता है, उसने वो बिजनेस टीम के ऊपर छोड़ देना चाहिए और नेटवर्किंग के ऊपर ही अपना केवल ध्यान देना चाहिए। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको पाओगे कि और भी बहुत सारी न्यूअर अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है। मेरे बिजनेस में मेरी बहुत सारी टीम मेंबर्स मुझे इसी प्रकार से नेटवर्किंग के थ्रू मुझे मिले हैं, और नेटवर्किंग के थ्रू ही मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली है बहुत सारी। तो मैं चाहूंगा कि नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज आप ना छोड़े कोई भी प्रकार से। राइट। एंड अगर हमें प्रमोट करना है नेटवर्किंग को, सो इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल दी माहेश्वरी महासभा की कुछ ऐसा फोरम क्रिएट कीजिए, एंड जो भी सपोर्ट लगता है वी आर ऑलवेज देयर। ओके, सो we will have a question answer session, and I already received few very interesting questions. So before that, I will request Palash to just present video of MBPM, what MBPM is doing for 2 minutes, and then we will take Q&A. Yeah. Wow.
Thank you, Palash. Thank you, Palash. Okay, so question and answer session. So very interesting question है नीलेश जी हमारे लिए. एक नीलेश जी एक क्वेश्चन आया है कि माँ का रोल क्या रहेगा, जैसे मैं हूँ और फादर है, उन दोनों के बीच में गैप है. सो इज देयर एनी रोल अ मदर कैन प्ले टू रिड्यूस दिस गैप एंड दिस बिजनेस सक्सेशन कैन हैपन? सो व्हाट इज द रोल ऑफ मदर इन दैट? मदर का रोल तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे क्लोज अगर होता है तो अपनी माँ के ही क्लोज होता है. एंड अप टू द 12 years ऑफ हिज लाइफ वो सबसे ज्यादा जो है वो अपनी माँ को चाहता है. और मुझे ऐसा लगता है कि अब इट्स हाई टाइम दैट ऑल माई सिस्टर्स एंड मदर्स रियलाइज दैट अगर हमको बच्चे को बिजनेस के अंदर प्रमोट करना है तो हमको उसका जो माइंडसेट है वो बचपन से ही उस प्रकार का बनाना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जितनी भी निगेटिव बातें अगर आप कभी करते हो अपने बच्चे के सामने, तो भूल कर भी निगेटिव बातें बिजनेस के बारे में ना करें. आप कितनी भी नाराज हो अपने हस्बैंड से कि वो टाइम नहीं दे रहे या ये आपके लिए वक्त नहीं निकाल रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि निगेटिव चीजें जो है बच्चों के सामने अवॉइड करनी चाहिए. एंड इनफैक्ट उनको अच्छे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी जो लाइफ स्टोरीज है वो उनको बतानी चाहिए, उनके बारे में उनको अवेयर करना चाहिए. कुछ आप उनको वीडियोस बचपन से ही आप उनको बता सकते हो ताकि बच्चे का उस क्षेत्र में रुझान बने. और जब उसका उस फील्ड में रुझान बन जाएगा तो 100% वो जो है आगे चलकर इस बारे में सोचेगा कि मुझे तो एक एंटरप्रेन्योर ही बनना है मेरे लाइफ के अंदर. और वो बट नेचुरल अपने फैमिली बिजनेस पर भी आएगा और अपने फादर के बारे में भी सोचेगा, अपने जो फादर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी आगे लाइफ में वैल्यू करेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मदर टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड सिंस अर्ली एज. Right. Okay, so next question. So I will club two questions actually because both are related. First question is whether higher education is impacting the risk-taking ability of students or youth. And the second question, what is important? Whether knowledge in the industry is important to do that business or ability to manage people is important. So this, I'm clubbing these two questions. Yes, great. So सर हायर एजुकेशन तो बिजनेस के लिए डैम्पनर नहीं है, बट जो हमारा जो सोचना है कि हायर एजुकेशन के बाद हमको जो हायर एजुकेशन किस लिए लेना है, कि हायर एजुकेशन हमको अगर जॉब के लिए लेना, अगर हम ये सोच कर रहे हैं तो जो सोच जो है वो बहुत डैम्पन करती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी को. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोच ये होनी चाहिए, हमारी सोच हमने बच्चों के अंदर ये बनानी चाहिए कि हमारा जो एजुकेशन हम ले रहे हैं वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रहेगा. हमको जो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में आगे जाना है तो ये एजुकेशन हमको उसके अंदर हेल्पफुल रहेगा. ये सोच अगर हम बनाते हैं तो फिर जो है उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी अच्छी रहेगी, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम नहीं होगी और वो हर बार ये सोचेगा कि मैंने जो हायर एजुकेशन लिया है उसका यूज मुझे कहीं ना कहीं खुद का बिजनेस बढ़ाने के लिए करना है. आज हो क्या रहा है कि हायर एजुकेशन लेने के बाद सब लोग को इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है और इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद क्या हो रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि नाउ ही हैज अराइव्ड इन हिज लाइफ, कि मैं सेट हो गया भाई, जीवन के अंदर मैं सेट हो गया. एंड जो ये होते हैं मैरिज प्रपोजल्स भी अगर हम बात करें तो वो देखते हैं कि भाई बच्चा सेट है. और आजकल हमारे माहेश्वरी समाज में ये बात है कि भाई पैकेज कितना है, आजकल पैकेज की बात करने लगे. तो भाई लड़के को पैकेज कितना, लड़की को पैकेज कितना, तो ठीक है भाई दोनों का मिलके 25-50 हो जा रहा है तो भाई ठीक है, जीवन में खुश हो गई है. तो ये चीज होती है. तो आजकल हायर एजुकेशन जो है उस हिसाब से ज्यादा लिया जा रहा है ऐसा मुझे लगता है. तो अगर हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से लेंगे तो उस हायर एजुकेशन का कुछ पर्पज रहेगा. दूसरा जो बात है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है या पीपल हैंडलिंग एबिलिटीज इंपॉर्टेंट है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों चीजें आपके पास में अगर 50-50 है तो फिर तो आप आइडियल एंटरप्रेन्योर, कि आपको आपके बिजनेस का नॉलेज है लेकिन शुरुआती नॉलेज आपको है, आपको पता है भैया ये होता है. मुझे पीएचडी करना जरूरी नहीं है मेरे बिजनेस में, बट मुझे इतना पता है कि भाई यहाँ तक मेरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर इतनी सब चीजें हैं. अगर आपको वो नॉलेज है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और उसके साथ में अगर आपके साथ में पीपल
हैंडलिंग एबिलिटीज अगर है तो फिर तो आप आइडियल एंटरप्रेन्योर बन गए। पर अगर आपको नॉलेज भरपूर है और आपके पास में अगर पीपल हैंडलिंग एबिलिटी नहीं है तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बिग हिट लेगा। और आपका केवल पीपल हैंडलिंग एबिलिटी है पर बिजनेस के अंदर आपका नॉलेज नहीं है तो आपके बेवकूफ बनने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में घुसने के पहले, एंटर करने के पहले एक बार नॉलेज और रिश्ते पीपल हैंडलिंग एबिलिटी दोनों अपने अंदर डेवलप कर लेनी चाहिए 50-50। यस सौरभ जी। ओके, सो नीलेश जी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन ऐसा है कि मैरिज में जो एक्सपेंडिचर करते हैं, शो ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या उससे बिजनेस को कुछ बेनिफिट या मिलता है? दिस इज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम अ पार्टिसिपेंट, so what is your view on this, sir? सर मैंने तो आज तक नहीं देखा मार्केटिंग कैंपेन कि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अगर बहुत जम के मैरिज किसी का हो गया और बहुत शो ऑफ हुआ है और उसको बिजनेस में आगे फायदा हुआ है। सी वी एज अ माहेश्वरी कम्युनिटी है ना, हमारी एनालिसिस की जो चीजें है या हमारा जो एनालिसिस है बहुत अलग होता है। हम जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होते। अगर कोई बहुत ज्यादा स्पेंड करता है ना तो हम इमीडिएट उसका जो दूसरा रीजन है ना वो सोचने लग जाते हैं। तो अगर आप दूसरी कम्युनिटी में कहीं जाओगे तो दूसरी कम्युनिटी को बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएगी और वो बोलेगी कि यार ना ये पर्सन जो है ये लाइफ के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है कि क्या यार इसने करोड़ों रुपए लगा दिए बच्चों के शादी के ऊपर। हमारी जो माहेश्वरी कम्युनिटी है तो वो अलग ढंग से सोचती है, बोलती है बॉस ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंस कर रहा है तो कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मतलब वाली बात नहीं है एंड ये बहुत एक पर्सनल मैटर होता है शादी, और इसको बहुत लिमिटेड वे में रखना चाहिए और ये कोई हेल्प आपको नहीं करती है। अगर आप उतना ही खर्चा अगर आप आपके नेटवर्किंग फोरम्स में करते हो, अगर आप अच्छे क्लब्स की मेंबरशिप लेते हो, अगर आप अच्छे एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स के अंदर खुद को रजिस्टर करते हो, इंटरनेशनली आप ट्रैवल करते हो, आपके बिजनेस के बारे में देखते हो, उतना ही खर्चा अगर आप करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा, मल्टीपल टाइम्स फायदा उससे ज्यादा उसके अंदर हो सकता है। Totally agreed, sir. Sir, next question from our participants. Again, I am clubbing two questions because both are of similar nature. How government schemes affect the business profitability? And second question is there any forum where Maheshwari bureaucrat can, we can connect to them and discuss our business idea with them and get their support? सी गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत हद तक बेनिफिट करती ही है एंड बहुत सारी सब्सिडीज आज गवर्नमेंट दे रही है, बहुत सारे लोन्स गवर्नमेंट दे रही है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने अभी एनकरेज किया है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट दे रही है। तो जरूर ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट तो करती है और आपका जो कैश फ्लो है उसको स्टेबल करने में आपको बहुत मदद करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे कंसल्टेंट्स आपने हायर करने चाहिए और अच्छे कंसल्टेंट हायर करके इन जो स्कीमों का जो लाभ है ना वो उठाना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है हमारे समाज का कि हम कंसल्टेंट्स के ऊपर पैसा खर्चा करना नहीं चाहते। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हमको पता है और हम खुद ही कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रवृत्ति जो है, ये जो माइंडसेट जो है हमारा, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। कंसल्टेंट का जो काम है वो कंसल्टेंट के ऊपर उसको देना पड़ेगा, उनके ऊपर हमको अच्छा स्पेंड करना पड़ेगा और ये जो फायदा ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम का हमको लेना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली ये बिजनेस को बूस्टअप कर सकती है। ना सेकंड थिंग कि क्या ऐसा कोई फोरम है जहां पर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो माहेश्वरी कम्युनिटी के साथ नेटवर्क कर सकते हैं, माहेश्वरी ब्यूरोक्रेट्स? सर ऐसा कोई परमानेंट फोरम तो मेरे ध्यान में अभी तक नहीं है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, एमबीपीए में भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स, शायद काकानी जी और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। माहेश्वरी महासभा भी समय समय पर इस प्रकार के सेशन ऑर्गेनाइज करती है जहां पर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो आकर गाइड करते हैं। बट एक परमानेंट जो प्लेटफॉर्म है वो परमानेंट प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, और वो परमानेंट प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में पूरे समाज ने काम करना चाहिए। राइट सर। So actually time तो हमारा हो गया है, but we have few more interesting question. So I would like to cover that also. So if everyone is okay. Sir, एक question है, how age affects the maturity of youth in their business life? So that is the question. Age of a youth affects their maturity.
सर ये जो है सब पुरानी बातें हो गई है कि भैया 20 साल का 22 साल का जो बच्चा है वो मैच्योर नहीं है। पुराने जमाने में होता था, अभी इस जमाने में ये बातें नहीं रही है। 20 साल के 22 साल के बच्चे जो है वो $1 मिलियन एंटरप्राइजेस बना रहे हैं। $1 मिलियन कंपनी उनकी जो है 22, 24, 25 साल में ही बन जा रही है। तो इसका और मैच्योरिटी का और एज का मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन अब बचा नहीं। और जिस प्रकार से यंग जनरेशन मैच्योर हो रही है, आप यंग जनरेशन से बात कीजिए और आपको पता पड़ जाएगा। आप 18-19 साल के बच्चे के साथ में बात करोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि उसको कहीं ज्यादा नॉलेज है आपसे, जितना ज्यादा आप गैदर कर रहे हो सकता है थोड़ी बहुत मैच्योरिटी 10-15% का फर्क इधर उधर पड़ेगा, पर उससे ज्यादा फर्क अभी नहीं पड़ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये बातें सोचनी नहीं चाहिए कि ये यंग है और ये शायद इमेच्योर है तो इसको इतना पैसा हमने नहीं देना चाहिए बिजनेस में, या ये ऐसी बातें नहीं। अगर ऐसी बातें होती तो ये जो ओयो जिन्होंने बनाया मुझे रितेश अग्रवाल 22 ईयर्स के अंदर 23 ईयर्स में ओयो बना दिया सर। तो बहुत खुद के लिए तो $1 बिलियन एंटरप्राइज उन्होंने बना ली। और अगर ये चीजें होती, अगर ऐसा सोचते उनके घर वाले कि भाई हम इनको ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे बिकॉज ही जस्ट 20, 18, 19 ऑफ एज, तो चीजें नहीं बनती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज हमने केवल ये देखना चाहिए कि उसका नॉलेज बेस कितना है और हमने उस यंग एंटरप्रेन्योर को उस फील्ड में बढ़ाना चाहिए। Right. Okay, sir. So I will take last question, one more. This is on Lahoti Hostel. Sir, what is the role of Lahoti Hostel in your life? And I'm clubbing one more question to it. How an hostel authority can develop entrepreneurship skills in the early stage of life? सर मेरे जीवन में अगर मैं बात करूं लाहौटी हॉस्टल के बारे में, तो एक जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल हॉस्टल ने प्ले किया है मेरे जीवन में, उससे बड़ा रोल कोई दूसरी संस्था ने अभी तक प्ले नहीं किया है। मैं बहुत खुद को फॉर्चुनेट समझता हूँ, बहुत खुशकिस्मत मैं समझता हूँ कि मुझे पुणे आने का मौका मिला। और पुणे आने के बाद लाहौटी हॉस्टल में मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन करवाया। मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था हॉस्टल के बारे में, लाहौटी हॉस्टल क्या है मुझे पता नहीं था। जस्ट कुछ हमारे रिश्तेदारों के बच्चे वहां पढ़ते थे, तो मेरे फादर ने सोचा कि भाई समाज का हॉस्टल है, समाज के हॉस्टल तुझे रहना है। हालांकि MIT से उसकी दूरी उस वक्त 8-10 किलोमीटर थी और मेरे जो बाकी के जो फ्रेंड्स लोग थे वो फ्लैट ले रहे थे, पर मेरे फादर ने कहा कि नहीं तू रहेगा तो लाहौटी हॉस्टल। और लाहौटी हॉस्टल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। डिबेटिंग्स का शौक था, ड्रामेटिक्स का शौक था, लाहौटी में डिबेट सेक्रेटरी रहा। वो गैदरिंग्स होते थे, उस गैदरिंग के अंदर बहुत सारे चीज़ों को बढ़ावा मिला। मेरे लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अगर मैं आया हूँ तो कि केवल लाहौटी हॉस्टल की देन है। और मोर देन पेरेंट्स, वहाँ की जो कमिटी है वो मोर देन पेरेंट्स हमको रखती है। आज आदरणीय दुर्गा भाऊ की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बहुत डिसिप्लिनरी थे, लेकिन उतने ही अंदर से सॉफ्ट थे, बहुत प्यार करते थे। अतुल भाऊ उस वक्त जब मैंने हॉस्टल में एंटर किया उसके 2 साल बाद अतुल भाऊ हमारी कमिटी में आए, सुशीला भाभी थी, न्याति भाभी थी, और बहुत प्यार के साथ, बहुत लाड़ प्यार के साथ बच्चों को जो है लाहौटी हॉस्टल शिक्षा देता है, आगे बढ़ाता है। जीवन में क्या राइट चीजें करनी चाहिए वो करता है। और जो नेटवर्किंग की आप बात कर रहे हो ना सर, तो सबसे बड़ा अगर नेटवर्किंग किसी ने कोई करता है आपके जीवन में शुरुआती स्टेजेस में, तो लाहौटी हॉस्टल करता है। आज अगर मैं किसी सिटी के बारे में सोचूं और मैं विचार करूं तो मुझे मेरे 2-3 हॉस्टलमेट्स आराम से वहां पर मिल जाते हैं। और बहुत सी बात ऐसे किस्से भी हुए कि किसी को बहुत अर्जेंट नीड आ गई और उसका काम वहीं पे 15-20 मिनट्स के अंदर हो गया, क्योंकि हमारा कोई ना कोई हॉस्टलमेट कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में भारत के विदेश में बैठा है, तो हमको टेंशन नहीं है। क्या वो लाहौटियन बोल दिया तो बात खत्म हो जाती है। तो बहुत बड़ा रोल लाहौटी प्ले किया है, लाहौटी हॉस्टल ने, MVPM ने प्ले किया इनफैक्ट। और जो दूसरी बात है कि किस प्रकार से MVPM की कमिटी जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकती है। यस प्लीज। तो किस प्रकार से MVPM की जो कमिटी है वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एफर्ट अभी ऑनगोइंग है। ये जो एफर्ट है वेबिनार ऑर्गेनाइज करने का, इतने पैंडेमिक के अंदर भी लोगों को एक साथ लाने का और उनको अवेयर करने का, उनके अंदर कॉन्शियसनेस जो है वो रखने का कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत अच्छी चीज है, आपको उसके अंदर आना चाहिए। बहुत सराहनीय कार्य MVPM कर रहा है। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जो कुछ बन पड़ेगा वो MVPM करेगा। और मैं मेरी तरफ से आज एक एश्योरेंस देता हूँ कि जब जब हॉस्टल ने बुलाया है मैं वहां पे हाजिर हुआ हूँ
और फ्यूचर में भी कभी भी कहीं भी कोई भी फोरम पे अगर MBPM मुझे कॉल करता है, आई एम ऑलवेज रेडी टू बी देयर। Thank you, sir. With this, we would like to conclude the session because we are already over time. Okay, so thank you to all the participants in the call for listening to us patiently and asking very nice questions. Sincere thanks to Nilesh ji for your wonderful and insightful session. Atul ji Lahoti and Malu uncle, आपके guidance and support के बिना we couldn't have conducted this session. So sincere thanks to everyone. Sincere thanks to Neha, Palash, Saloni, and Akansha, ECS member committee, for coordinating this webinar. Thank you. Thank you very much. Thank you everybody.